Welcome to Gangotri Group of School. Today we are going to study a new article, that is standing wave in string fixed at both end. How a standing wave exists in string, this topic we will study today. I am going to fix a string at both the end. Now I will vibrate this string in different mode. Clear? The very first mode is how a standing wave can exist in a string AB which is fixed at both ends A and B. The way of standing wave of existing in this string will be these. What I am going to show you here. First, the length of the string is L, and the second way is this. Second way is this. Clear? Now the third one will be because both the end of the string are fixed, that's why there will be a node at both the ends. Clear? That's why I am going to show this kind of wave, standing wave in the string. Now you can draw the infinite figure. First, second way, third way, fourth way. This is L. We know the distance between two continuous nodes is L by 2. This length is L by 2. We know this. I have shown this in my previous lecture. Now, by this figure, we can say L is equal to 2 by lambda by 2. That's why lambda is equal to 2L. We know the velocity of any wave is lambda into mu. Mu is frequency. Clear? That's why the frequency will be V by lambda. And V is root T by mu. 1 by 2L. Clear? Velocity of wave we know is root T by mu, where mu is the mass of unit length. That's why frequency of this mode is 1 by 2L T by root mu. And we can calculate the frequency of this mode of vibration will be same like this. This is L. And now this length will be lambda by 2. This length will be lambda by 2. That's why this length will be lambda. For this mode of vibration. And for this figure, we can say that
lambda is equal to L. That's why the frequency will be 1 by L T by mu. Now likewise for this figure frequency 1 2 3 for third figure, here lambda by 2 lambda by 2 lambda by 2, it means 3 lambda by 2, 3 lambda by 2. Mu 3 will be L is equal to 3 lambda by 2. L is equal to 3 lambda by 2. That's why lambda is equal to 2L by 3. That's why 2L 3 root T by mu will be the frequency in this mode. Clear? For this mode. Now for this the length will be 1 2 3 4 lambda by 2. Now for this figure frequency will be mu will be 4 by 2L T by mu का रूट. क्लियर? ये मुझे पता चलता है कि यदि मैं स्टैंडिंग वेव एक स्ट्रिंग में जिसके दोनों एंड से स्ट्रिंग फिक्स्ड है जनरेट करता हूं, स्टैंडिंग वेव को जनरेट करता हूं, तो अलग अलग मोड में फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से आती है, कैलकुलेट की जाती है. क्लियर? तो ये जो तरीका है आप याद रखेंगे. इनके नाम भी होते हैं, जैसे कि इसका नाम क्या होता है, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन. इस प्रकार के इसके नाम भी होते हैं. इसका नाम होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक. ये जो तरीका है वाइब्रेट करने का स्टैंडिंग वेव का स्ट्रिंग में, इसकी इस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है फर्स्ट हार्मोनिक, पहली फ्रीक्वेंसी को, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. क्लियर? इसका होता है सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ये होता है फोर्थ हार्मोनिक. इसी प्रकार से मैं इसको बोल सकता हूं, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसको मैं कह सकता हूं फर्स्ट हार्मोनिक, और इसको कह सकता हूं फर्स्ट ओवरटोन. ये सिर्फ नाम है इनके. किताबों में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिंग वेव जो कि दोनों एंड पर फिक्स्ड है उसकी थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बताओ, या सेकंड ओवरटोन. थर्ड हार्मोनिक का नाम सेकंड ओवरटोन भी होता है, जैसे सेकंड हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं. तो ये आपको याद रखना चाहिए, सेकंड ओवरटोन. इसी प्रकार से इसको थर्ड ओवरटोन बोला जाता है. तो ये आप याद रखेंगे. यहां आप पाएंगे कि ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी एक ऑर्डर में है. समझे? इनका रेशियो देखो क्या आ रहा है. अगर मैं μ1 रेशियो μ2 रेशियो μ3 रेशियो ऑफ μ4 देखता हूं तो आएगा 1:2:3:4. ये देखो 1:L लिखा हुआ है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देता हूं. 1/L था तो 2/2L लिख सकता हूं इसको. देखो अब सब कुछ पीछे सेम है. रूट टी बाई म्यू, नीचे क्या है 12. अब ऊपर क्या है 1 2 3 4. तो μ1 μ2 μ3 μ4 क्या आएगा 1:2 3:4. तो इसका मतलब यहाँ सारी की सारी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती हैं. अगर एक स्ट्रिंग में दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो उसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट करने के जो तरीके होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एक ऑर्डर में आती है, फिक्स ऑर्डर में, 1:2 3:4 ऑर्डर में. क्लियर? ये समझ में आया आपको? तो इसको ध्यान से देखें. नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड. यदि स्ट्रिंग को एक एंड पर फिक्स किया जाता है और फिर उसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट की जाती है तो वो किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी प्रदर्शित करेगी वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको. जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैंने कुछ तरीके आपको यहाँ दिखाए हैं. पहले तरीके में हमेशा यहाँ यदि स्ट्रिंग एक एंड पर फिक्स और दूसरी एंड पर ओपन है, फ्री है, तो जो एंड फ्री है वहाँ एंटी नोड बनेगा और जहाँ फिक्स है वहाँ बनेगा नोड.
ये नोड बनेगा हमेशा, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट करने के लिए फ्री नहीं है पॉइंट, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट करने के लिए फ्री है, तो यहाँ एंटी नोड हमेशा बनेगा। तो इस प्रकार से वाइब्रेट करेगी एक स्ट्रिंग यदि वो एक एंड पर फिक्स है और दूसरे एंड पर फ्री है। क्लियर? तो यहाँ हम लिखते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ बराबर आ जाएगी λ/4। कैलकुलेशन उसी टाइप से मैं यहाँ करूंगा। 4L के बराबर लैम्डा आया। वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होता है वेव की, लैम्डा इंटू म्यू होता है। तो म्यू जो आएगा वो वेलोसिटी ऑफ वेव बाय लैम्डा आएगा, और वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है वो सब जानते हैं √T/μ होता है। किसी स्ट्रिंग में वेव की वेलोसिटी ऐसे लिखी जाती है। तो यहाँ जो म्यू आएगा मेरे पास, फर्स्ट वेव की जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी लैम्डा कितना हुआ यहाँ 4L, यानी 1/4L T/μ रूट। टेंशन T टेंशन है, जो रस्सी में टेंशन है। तो ये आएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास आएगी। फिर इसके बाद जो मुझे यहाँ देखने को मिलेगा, दूसरे वाले तरीके से यदि स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको मैं 2 नाम दे देता हूँ, और वो कैसे लिखी जाएगी। अब की बार लैम्डा की वैल्यू आएगी 4L/3, इस बार लैम्डा आएगा 4L/3। तो जो म्यू आएगी फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी बाय लैम्डा, यानी ये, यानी 3/4L T/μ का रूट। इस केस में ये फ्रीक्वेंसी आएगी। ऐसे ही यदि मैं इस केस की बात करता हूं, इसमें फ्रीक्वेंसी आएगी 3/4L T/μ। ऐसे ही यहां आएगा 7/4L T/μ का रूट। ये देखने को आपको यहां मिलेगा। इसका नाम होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, क्लियर? यहां इसका नाम होता है थर्ड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक यहां गायब है, क्या है? थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक इसी प्रकार से ये फिफ्थ हार्मोनिक, और ये सेवेंथ हार्मोनिक। अगर यहां रेशियो देखोगे आप, μ1 μ2 μ3 μ4 का अगर रेशियो देखोगे तो वो रेशियो 1:2:3 नहीं आएगा, ये आएगा 1:3:5:7। क्लियर? अगर आप रेशियो देखना चाहते हो तो मतलब यहां मैं ये बोल सकता हूं कि कुछ फ्रीक्वेंसीज जो रेशियो में आनी चाहिए, जो ऑर्डर में आनी चाहिए, वो यहां से गायब है। ये भी ऑर्डर में ही है। किसके ऑर्डर में? 1, 3, 5, 7 के ऑर्डर में है ये। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी देखना चाहता हूं, क्लियर, जैसे पीछे मैंने देखा था 1:2:3:4, तो यहां मैं ये बोलता हूं कि कुछ हार्मोनिक यहां गायब होते हैं। सेकंड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक यहां गायब है। क्लियर? तो ये आप याद रखेंगे। नाउ वी विल स्टडी स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप। देखो ध्यान से, यदि मैं एक ऑर्गन पाइप लेता हूं क्लोज्ड, पहले मैं क्लोज्ड को स्टडी करता हूं। ये क्लोज्ड ओपन पाइप, फर्स्ट लेता हूं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इसकी लेंथ L मुझे बताई गई है, ये L लेंथ है। तो इसके अंदर की जो एयर है वो कितने तरीके से वाइब्रेट कर सकती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां से यदि आप कोई वेव इंट्रोड्यूस कराते हो, यहां से कोई साउंड वेव एंटर करती है, तो यहां से टकरा के वापस आएगी, इस फेस से टकरा के वापस आएगी। क्लियर? ये फेस कैसा है? हार्ड बाउंड्री की तरह ट्रीट करेगा ये। साउंड में याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग वेव यदि हार्ड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट करती है तो पाई का फेस डिफरेंस आ जाता है। समझे ना? किसमें? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे में। वो किसमें होता था? ट्रांसवर्स वेव में। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह है। किसकी तरह? लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह। लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऐसा नहीं होता है कि रिफ्लेक्शन के बाद पाई का डिफरेंस आ जाता है, ऐसा लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं होता है। साउंड में ये नहीं होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद पाई का डिफरेंस आ जाएगा, याद रखना ये चीज। तो क्लियर? यहां से अगर साउंड वेव जाती है तो टकरा के वापस आएगी, तो आने वाली वेव और जाने वाली वेव, आने वाली वेव और जाने वाली वेव इस
रीजन में सुपर इंपोज होंगी, जिसकी वजह से स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी। और वो स्टैंडिंग वेव कितने प्रकार से यहाँ एग्जिस्ट कर सकती है वो मैं बताने जा रहा हूं। ये क्लोज्ड एंड है, क्लोज्ड एंड पर हमेशा हमेशा नोड बनेगा। यदि आप यहां प्रदर्शित कर रहे हो साउंड वेव को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, यदि डिस्प्लेसमेंट के टर्म में यहां साउंड वेव को आप प्रदर्शित करना चाहते हो, हम जानते हैं साउंड वेव को दो तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, एक डिस्प्लेसमेंट के टर्म में और एक प्रेशर के टर्म में। तो मैं यहां डिस्प्लेसमेंट के टर्म में साउंड वेव को शो कर रहा हूं इस पाइपलाइन के अंदर, समझे ना, इस ऑर्गन पाइप के अंदर। मैं जानता हूं क्लोज्ड एंड पे हमेशा क्या बनेगा, नोड बनेगा, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो पहला तरीका ये होगा, समझे, ये कौन है, नोड, और ये कौन है, एंटी नोड। तो इसी प्रकार से यहां एक बात ध्यान देने वाली है, ऑर्गन पाइप में जो मैं ये बता रहा हूं कि एंटी नोड ओपन पाइप पे बनता है, एक्चुअल में थोड़ा सा बाहर होता है, समझे ना। अगर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि एंटी नोड ओपन एंड से थोड़ा सा बाहर होता है, उस डिस्टेंस को एंड करेक्शन बोलते हैं। ज्यादातर हम क्वेश्चंस में इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इसी पॉइंट पर फ्रेम किए जाते हैं। तो ये एंड करेक्शन में अलग से आपको ये कंप्लीट करने के बाद बताऊंगा, क्लियर। तो इसको ध्यान से सुने पहले आप। अभी मैं नेग्लेक्ट मान रहा हूं एंड करेक्शन, अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि एंटी नोड कहां है, ओपन एंड पर, ये मान के चल रहा हूं। मैक्सिमम क्वेश्चन यही होता है, जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाए आप ये मानेंगे कि एंटी नोड कहां बन रहा है, ओपन एंड पर। तो अभी मैं ओपन एंड पे मान रहा हूं। कितने तरीके से ये ओपन ऑर्गन पाइप वाइब्रेट कर सकता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझते जाएं। बिल्कुल आसान है ये, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एकदम आसान है, बिल्कुल जैसे अभी हमने स्ट्रिंग की बात की, स्ट्रिंग की तरह ही इसको भी हम सोल्व करते हैं। मैंने सेम लेंथ के फिगर बनाए, एक ही ऑर्गन पाइप है, एक ही ऑर्गन पाइप में किस किस तरीके से स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट कर सकता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, हमेशा ओपन एंड पे मुझे क्या बनाना है, एंटी नोड। इस तरीके से फिगर बनाओगे कि ओपन एंड पे हमेशा क्या बने, एंटी नोड। तो ये लेंथ एक नोड और एंटी नोड के बीच की लेंथ होती है λ/4। लगातार अगर मैं नोड एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस देखता हूं तो λ/4 होती है, नोड नोड के बीच λ/2 होती है, एंटी नोड के बीच λ/2 होती है। अगर हम कंटिन्यूअस दो नोड की बात करूं तो उनके बीच λ/4, कंटिन्यूअस दो एंटी नोड की बात करूं तो उनके बीच λ/2, नोड नोड के बीच λ/2, एंटी नोड के बीच λ/2, और नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4। तो ये डिस्टेंस λ/4 होगी। तो यदि इस तरीके से एयर वाइब्रेट करती है, स्टैंडिंग वेव इस फैशन में एग्जिस्ट करती है, तो मैं बोलूंगा कि L बराबर क्या आया, λ/4। ये λ/4, ये वाली वेव और ये वाली वेव, ये वाली वेव, ये वाली वेव, अलग चार तरीके से जो स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट करती हैं, सभी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, क्योंकि सभी की लैम्डा अलग है। इसकी लैम्डा अलग है, इसकी लैम्डा अलग है, इसकी लैम्डा और इसकी लैम्डा अलग है, और साउंड वेव की वेलोसिटी सेम होगी। तो लैम्डा अगर अलग है, वेलोसिटी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। और वो फ्रीक्वेंसी ही मैं यहां चेक करना चाहता हूं, कैलकुलेट करना चाहता हूं कि वो फ्रीक्वेंसी कैसे आ रही है, एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट रखती है, वही मैं बता रहा हूं आपको। तो देखो यहां से लैम्डा मेरे पास आया 4L। मैं जानता हूं फिर से कि वेलोसिटी होती है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ वेव बाय लैम्डा। अब वेलोसिटी ऑफ वेव यहां क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, जो कि फिक्स होगी, ये किस किस बातों पे डिपेंड करेगी, ये वेलोसिटी कौन सी है, रूट बीटा बाई रो या रूट गामा RT/m। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर में कांस्टेंट ले रहा हूं,
हर एक एक्सपेरिमेंट में, इसमें, तो यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर? तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो आएगी यहां से वो आएगी v/4L, ये आएगा फर्स्ट। अब इसके बाद सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में अगर मैं देखता हूं तो मुझे पता चलेगा कि ये λ/4 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 ये आ रहा है 3 λ/4। क्लियर? इस केस में जो लैम्डा आएगा वो आएगा 4L/3, इसलिए फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4L3V। ऐसे ही अगर मैं यहां बात करता हूं, इस केस की बात करता हूं, तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आएगी 5V/4L। 1 2 3 4 5 ये आएगा 5 λ/4, तो 4L/5 लैम्डा आएगी L की वैल्यू, सॉरी लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा यहाँ क्या है 4L/3, तो यहाँ लैम्डा आएगा 4L/5। इसी प्रकार से यहाँ फ्रीक्वेंसी यदि आप निकालोगे 4, वो आएगी 7V/4L। ये बिल्कुल वही आ रहा है हमारे सामने जो स्ट्रिंग के रिजल्ट थे, जब स्ट्रिंग एक एंड पर फ्री थी, ये रिजल्ट है। उसमें भी सारे के सारे ऑड हार्मोनिक देखने को मिलते हैं, ये भी सारे ऑड हार्मोनिक है। ये क्या है? फर्स्ट हार्मोनिक। ये क्या है? सेकंड हार्मोनिक। इसको क्या बोलते हैं? और दूसरा फंडामेंटल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये थर्ड नहीं, ये 3 है ना, तो यहां आएगा थर्ड हार्मोनिक। सेकंड तो गायब है इसमें। यहां देखो V/4L, 3V/4L, 5V/4L, 7V/4L, तो 2V/4L, 4V/4L, 6V/4L गायब है, तो मैं यहां लिखूंगा थर्ड हार्मोनिक। और ये आ रहा है फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। इसमें जो इवन नंबर ऑफ हार्मोनिक है वो गायब है, इवन हार्मोनिक गायब है इस केस में। यहां क्या आएगा? सेवेंथ हार्मोनिक। इसको मैं बोल सकता हूं फर्स्ट ओवरटोन। ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, समझे? ये भी नाम होता है, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। इसका कोई ओवरटोन नाम नहीं होगा। ये रेशियो आप देखोगे तो V/4L का ये 2 गुना नहीं है, 3 गुना है, इसलिए यहां थर्ड हार्मोनिक आया है, सेकंड हार्मोनिक नहीं आया है। ये फंडामेंटल का 3 गुना नहीं है, 5 गुना है, तो यह है फिफ्थ हार्मोनिक। समझे? यहां सेकंड हार्मोनिक नहीं आएगा। अगर इसका 2 गुना ही होता तो सेकंड हार्मोनिक आता। ये थर्ड हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक है, सेवंथ हार्मोनिक है। ये हार्मोनिक फर्स्ट के रेस्पेक्ट में दिया जाता है कि पहले का एक कितना गुना है, 3 गुना है तो थर्ड हार्मोनिक, 5 गुना है तो 5वां हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। क्लियर? इस तरीके से लिखते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया, यदि ऑर्गन पाइप एक एंड पर फ्री है तो किस प्रकार से आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है इस ऑर्गन पाइप की, और इनका रेशियो आता है 1:3:5:7। ये सेम रिजल्ट रखती है जो रिजल्ट एक एंड पर फ्री स्ट्रिंग रखती है, वही रिजल्ट ये आते हैं। क्लियर? तो ये आप अच्छे से समझेंगे।